গৰমে হৈছে সমগ্ৰ ইউৰোপ, জাৰ্মানী, ফ্ৰান্স, ইটালী, ডেনমাৰ্ক, ছুইজাৰলেণ্ড আৰু চেক গণৰাজ্যকে ধৰি ইউৰোপৰ কেইবাখনো দেশত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা। জুন মাহতেই ভংগ হৈছে ইউৰোপৰ পূৰ্বৰ তাপমাত্ৰাৰ সকলো অভিলেখ। ঠাই বিশেষে 41 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ অতিক্ৰম কৰিছে তাপমাত্ৰাই। প্ৰচণ্ড গৰমৰ ফলত ইউৰোপত ব্যাহত হৈ পৰিছে জনসাধাৰণৰ জনজীৱন। চিকিৎসালয়সমূহত বৃদ্ধি পাইছে জৰুৰী ৰোগীৰ সংখ্যা। ফ্ৰান্সত বৃদ্ধি পাইছে গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। ইটালীৰ বহু চহৰত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। ইউৰোপৰ নদ নদীৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত প্ৰভাৱ পৰিছে কৃষি খণ্ডতো। জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহে দহিছে ইউৰোপৰ কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰক। নাগৰিকসকলক অতিৰিক্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে চিকিৎসক আৰু বিশেষজ্ঞসকলে। অনাগত কেইবাদিনলৈও ইউৰোপত উৎকট গৰম অব্যাহত থকাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। В Берлине. Можно искупаться, если кто-то хочет. Для разгона демонстраций. Genau, wer möchte, darf sich gerne ein bisschen abkühlen. Genau, wer möchte, darf sich gerne ein bisschen abkühlen. Вот так полицай борется. ভূটানত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত বানৰ তাণ্ডৱ। তুৰছা নদীৰ বাহনী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলটো। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ধনে প্লাবিত কৰিছে গেটৱে অৱ ভূটান। জলমগ্ন হৈ পৰিছে ঘৰ দুৱাৰ বাট পথ সকলো। ইপিনে ভূটানত হোৱা প্ৰবল বৃষ্টিপাত তথা প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ ফলত নামনি অসমতো বানৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। यो अहिले भने हिजो रातिको पानीले गर्दाखेरि पुरा एकदमै ओभर फ्लड आएछ। यो बिल्डिङहरू धरि अब डुबाउ भएछ। पुरा एकदमै बेसी पानी परेर चाहिँ यसो यहाँ साइडमा जुन चाहिँ यो चाहिँ भुटान गेटमा आज पानी यस्तो डेन्जर पऱ्यो कि आम्म खतरा पानी पऱ्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त आम्म रोडभरि मिनी तुर्सा त यहाँ कुदिरहेको छ यार आज नि आम्म पानी दिन भन्ने आज ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী। কেইবাখনো জিলাত আহিব ধাৰাসাৰ বৰষুণ। চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আশংকা। আজি চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। কাইলৈ চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। কাইলৈ উজনি আৰু নামনিৰ কেইবাখনো জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। কাইলৈ বাক্সা, লখিমপুৰ আৰু ধেমাজিত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকনিৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। পুনৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা। অনাগত দুদিনলৈ কেইবাখনো জিলাত এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। অৰুণাচলৰ কেইবাখনো জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আজি পাপুমপাৰে, লোৱাৰ সোৱণশিৰি, লোৱাৰ চিয়াং, পূব চিয়াঙত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। কাইলৈ পশ্চিম কামেং, পাপুমপাৰেত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। কাইলৈ পূব কামেং, পাকে কিচাং আৰু লোৱাৰ সোৱণশিৰি, পূব চিয়াঙত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। 24 জুনত কেই পানৈ জিলা আৰু লোৱাৰ সোৱণশিৰি জিলাত হৈছিল ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা। ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ পাছতেই বান ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে দুয়োখন জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলসমূহ। ইফালে অৰুণাচল প্ৰদেশত বান ভূমিস্খলনত নিখোজ লোকৰ সন্ধানত NDFৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। 24 জুনত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বান ভূমিস্খলনত দুগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে নিখোজ হৈছিল 3 গৰাকীকৈ লোক। নিখোজ হোৱাৰ সন্ধানত কেই পানৈত অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান। NDFৰ লগতে SDRF তথা স্থানীয় আৰক্ষীয়ে চলাই গৈছে উদ্ধাৰ অভিযান।
जो नेपको का इलाका है उसमें 5 मिसिंग पाए गए थे और एसडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। एनडीआरएफ को भी रिक्वेशन किया गया था, चूँकि रोड ब्लॉकेज की वजह से एनडीआरएफ शुरुआती के 2 दिनों में नहीं पहुंच पाई। कल एनडीआरएफ की टीम यहाँ आई है और सर्च ऑपरेशन कर रही है। हमारे साथ स्पेशल इक्विपमेंट्स, कैनाइन और बोट के द्वारा जो भी हाइड आउट्स है उसमें हम लोग सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हमने कैनाइंस का भी इस्तेमाल किया है कि अगर पॉसिबिलिटी हो कहीं पर लाइव विक्टिम्स के चांसेस हो, उन सारे पैकेट्स में हमने उनका इस्तेमाल किया है। और हमारी कुछ टीमें और भी स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ आज ज्वाइन करने वाली है, तो मोस्ट प्रोबेबली बाय इवनिंग हम सर्च ऑपरेशन को और इंटेंसिफाई करेंगे। वेदर, हिली एरिया और जो आपने देखा होगा आसपास इतने ज़्यादा फ्लैश फ्लड का मलबा है, तो उसके वजह से चैलेंजेस तो हैं, लेकिन हमारी कोशिश जारी है और जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं, हमारे पास एक्सपर्टीज है, उसके अनुसार हम सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं और होपफुली बाय इवनिंग और मिल जाने के चांसेज है। थैंक यू सर। प्रबल বৃষ্টিপাতৰ ফলত হোৱা বানে উটুৱাই নিলে ছিকিমৰ মনগা জিলাৰ এখন দলং। জিলাখনৰ ফিডাং অঞ্চলত থকা ফ্ৰীখোলা নৈৰ ওপৰত বেৰী নামৰ দলংখন ভাগি চুৰমাৰ হ'ল কৃত্ৰিম বানত। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত দলংখন উটি যোৱাত এতিয়া ছিকিমৰ ফিডাং আৰু চাংকালাং অঞ্চলৰ মাজত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। এতিয়াও দলংখনৰ অৱশিষ্টৰ ওপৰে বাগৰি গৈছে নদীৰ পাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাতত অসমৰ হাড়গিলা আৰ্মিৰ প্ৰসংগ। বিপদাপন্ন হাড়গিলা চৰাইৰ সংৰক্ষণৰ বাবে আহু পুৰুষাৰ্থ কৰা অসমৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনৰ শলাগ ল'লে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এসময়ত সৰ্বত্ৰে হাড়গিলা চৰাই অশুভ বুলি অন্ধবিশ্বাস আছিল, সেই অন্ধবিশ্বাস দূৰ কৰি হাড়গিলা সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টাত ব্ৰতী থকা পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনৰ নেতৃত্বাধীন হাড়গিলা আৰ্মিৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। এসময়ত গাঁৱৰ পৰা খেদি পঠিওৱা হাড়গিলা চৰাই এতিয়া এখন গাঁৱৰ পৰিচয়ৰ বাহক বুলি উল্লেখ কৰিলে মোদীয়ে। উল্লেখ্য যে বিশিষ্ট বন্যপ্ৰাণী জীৱ বিজ্ঞানী ডক্টৰ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনৰ নেতৃত্বৰে 2000 মহিলাৰে গঠিত এটা হাড়গিলা সংৰক্ষণ আন্দোলনৰ নাম হ'ল হাড়গিলা আৰ্মি আৰু এই হাড়গিলা আৰ্মিৰ আৰম্ভ হৈছিল 2007 চনত। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगिला। हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है।
আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মন কী বাতত মেঘালয়ৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হয় মেঘালয় সম্পৰ্কে মেঘৰ সৈতে প্ৰকৃতিৰ নৈসৰ্গিকতাৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত মেঘালয়ৰ লিভিং ৰুট ব্ৰিজৰ প্ৰসংগ মেঘালয়ৰ জীৱন্ত গছৰ শিপাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দলং প্ৰকৃতিৰ সৈতে মানুহৰ সহাৱস্থানৰ উদাহৰণ লিভিং ৰুট ব্ৰিজ এবছৰ বা কেইটামান বছৰত সাজি উলিয়াব নোৱাৰি শ বছৰ প্ৰচেষ্টাত গছৰ শিপাৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় লিভিং ৰুট ব্ৰিজ যিমানেই পুৰণি হয় সিমানেই মজবুত হয় 500 বছৰতকৈ পুৰণি লিভিং ৰুট ব্ৰিজ এতিয়াও ব্যৱহাৰযোগ্য मेरे प्यारे देशवासियों मेघालय की पहचान बादलों से है खूबसूरत नजारों से है जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं ये है मेघालय के रूट ब्रिज रास्ता वाला रूट नहीं जड़ों वाला रूट इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है इन जड़ों को जलधाराओं के पार ले जाया जाता है समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं इन ब्रिजों की एक और विशेषता है ये जीवित ब्रिज है समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है ये हमारे देश की इस धरती की धरोहर है अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है साथियों क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है आपने देखा होगा इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है साथियों आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर की